Okay, so what do you think that is like one must have experience, like not must have experience but must do in life thing, कि ये तो जिंदगी में एक बारी करना ही करना चाहिए, कुछ भी हो जाए? और कैसा? चलिए मेरा सेट लगा दीजिए. चलो, can we shoot please? I am ready. I'm Sadhika. I'm Radhika. अरे भाई, साधिका का गंध अगर हम साइड पे रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि the one single most important thing that everybody should do in life, women more importantly, is to live alone. Bhai, you watch Queen? Yes. I'm telling you, that is not bullshit. The revolution that she goes through, the evolution that she goes through, it happens for a fact. Because हम लोग तो स्पेशली वी आर लाइक ऑल डैडीज प्रिंसेस, आज तक कभी बर्तन नहीं उठाए, चाय बनानी मैंने तो बहुत लेट सीखी थी, ठीक है तू अब बना लेती है, रोटी नहीं बनानी आती मेरे को आती है. खाने के, प्लीज साधिका, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट और विल टॉक अबाउट इट लेटर, दैट इज नॉट इनफ. या फिर खाना बनाने के नाम पे मैगी बनानी आती है, राइट? एंड वी बीन वेरी लाइक प्रोटेक्टेड इन दैट शेल. Pampered. Yeah. And we honestly don't know what struggle is. We actually did not know before we stepped out of our houses, our comfort zone. And I did not know before Ananya Pandey spoke about struggle. yeah, so, you know, that is a whole other experience. And I think everybody should go through it. And, like, you know, it is... So, I think even Ranveer spoke about this in his podcast. I don't... Ranveer, that ये काम मुझे बहुत... ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई. लाइफ में ग्रोथ चाहिए, घर से निकल जाओ. जितना जल्दी करोगे, बेटर फॉर यू. You learn how to be on your own. You learn how to manage a house. You learn how to manage your expenses. All the things that I believe women especially are never even mindful of. They have to do other than the kitchen work. Kitchen work is eventually something that women have to learn. But I think बाकी But not only women, everybody must learn. everybody, but मैं लड़कियों की बात करूँ कि why is it important for women particularly to move out of their houses? So other than the kitchen bit, right? Getting a hang of your expenses, independence, you know, financial independence is one thing. But this sort of an independence that मैं कर लूँगी manage, that is a whole other learning. And it just stays with you. I believe it changes you as a person. It completely changes you as a person. एंड आई थिंक कि वो वाला कीड़ा ना, जैसे बचपन में ये वाली चीज़ नहीं होती थी कि मेरे को जल्दी से बड़े होना है क्योंकि मेरे को जॉब पे जाना है या फिर मेरे को ऑफिस में जाना है. जस्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू एन ऑफिस, यू नो, विद योर लैपटॉप एंड सिटिंग एंड बीइंग एन अडल्ट फैसिनेटेड यू. सिमिलरली आई थिंक बड़े होते होते ना तो मैं ये वाली चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाती है, फिर पेरेंट्स रियलाइज़ करवा देते हैं कि यार अभी तुम इतने साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, ठीक है, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम अपने पति और उसके घर पे रहोगे या फिर अकेले रहोगे, बट यू लिटरली बी जंपिंग फ्रॉम वन, यू नो, हाउस होल्ड टू अनदर. तो वो जो फ्रीडम वाली चीज़ होती है, क्योंकि लड़के फिर भी, और आई डोंट वांट टू मेक दिस अ जेंडर इशू एंड ऑल, बट रिलेटिवली, यू नो, लाइक माई ब्रदर हैज़ बिन गिवन अ लिटिल मोर लीवे देन मी, ठीक है, इन माई हाउस. They've been whatever liberal with me also, but फिर भी थोड़ा बहुत इधर And उधर for good होता है. reason, yeah, वो हाँ, good reason होना है भी कि चाहिए. क्यों लड़कों को ज़्यादा independence, freedom मिलती है, because well, the world out there is safer for men in that case. But you know, that freedom also, that sense of freedom. This is actually a point that I missed. Yeah. Which is the liberty that you feel when you move out of a house. It also makes you responsible. But It makes you also responsible. liberates you. Yeah, but to be very honest, जब मैंने, so basically to give you guys context, I moved out of my house right after college. Third year of college खत्म हुआ मेरे को, in fact, and I think my parents will hate me for it, but we were living in Noida उस टाइम पे, ठीक है, and I purposely picked a firm
जिसका ऑफिस था गुड़गांव, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं ये बोलूँगी कि नोएडा से गुड़गांव डेली अप एंड डाउन, इसमें तो पापा 3 घंटे निकल जाएंगे, आई थिंक इट्स बेटर कि मैं अकेले रहूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तब मेरा पर्पस ग्रोथ नहीं थी, मेरा पर्पस लिबरेशन नहीं थी. मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि देखो भाई, दोस्त बनते हैं, रात को पार्टी के लिए जाना होता है, कर्फ्यू पे वापस आने में बहुत किलस मचती है, बिकॉज ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स आर पार्टिंग एंड यू आर द ओनली पर्सन हु हैज़ टू कम बैक होम, राइट. यंग होते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट, लाइक be wild, young and free kind of a zone. So to be very honest, उस time पे तो evolution had not hit me. I was just normal 21-year-old who wanted to live alone, and I had a very I love my experience of living alone, but I've sort of, it's like a bittersweet experience or journey that I had. तो मैं गुड़गांव में रह रही थी और मेरा ऑफिस और मेरा घर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था. इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा आया था कि माई होम बिकेम द डेजिग्नेटेड आफ्टर पार्टी और आफ्टर ऑफिस आवर्स वाला स्पॉट, कि वहाँ पे दारू पड़ी होती थी, वहाँ पे सारे लोग चिल कर रहे होते थे, स्पीकर पड़े हुए थे, एंड एनीबडी कुड कम इंक्लूडिंग यू एंड जस्ट चिल देयर एंड स्टे देयर एंड डू ऑल ऑफ दैट. बट उस टाइम पे मेरे को जाके समझ आया कि शुरू के 1-2 महीने तो तुम उस बेड एड्रेनलिन पे निकाल देते हो, और बाद में जाके तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई हर दिन मैगी नहीं खा सकते. तुम्हें जब चाय नहीं बनानी आती बट तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए, तुम हर दिन ऐसे टेट्रा पैक वाले जूसेस पे नहीं निकाल सकते ना, तुम हर दिन बाहर से अपना खाना मंगवा के खा सकते हो, बिकॉज देन यू रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग. सो आई फील दैट the first half of my experience of living alone, I only lived alone for 1.5 years at that time. It was very fun and freedom and late nights out and, like saying yes to dates and not thinking twice before and wearing whatever I wanted to wear also. Because let's face it, जब अपने खुद के घर से बाहर निकलना होता है पार्टी पे जाने के लिए, जहाँ पे मॉम डैड भी रह रहे होते हैं, obviously you will dress in a certain way. But जब तुम अकेले रह रहे होते हो, obviously you're a little more like, who cares? Nobody to check me, like like nobody to warn me कि don't wear this. So that happened, but later on I realized, in fact अकेले रह के मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करना क्या होता है, कि गीज़र ऑफ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, लाइट के स्विचेस ऑन ऑफ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, पानी बचाना क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज जब बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारा जितना रेंट है उसके नियर आ चुकी है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि अच्छा, दिस इज़ वाई पीपल सेव, दिस इज़ वाई पीपल आर माइंडफुल. It makes you responsible for sure. I personally did not face much of a challenge as a woman living alone because I was abroad. When you're living here, safety वगैरह का concern थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. I was abroad, so in all honesty, मेरे को वही challenges आए जो किसी भी इंसान को आते हैं, irrespective of their gender. But I'll tell you कहाँ पर, like what was the main challenge that I faced, which is that when you're living alone in India, you can afford outside food. You can afford Maggie also, you can afford ordering in also. But when you're abroad, you realize you cannot afford a 10 euro meal every day. You just can't. Also at the same time, let's say even if you can, you're bored of their food. I'm sorry to say, the Italian that we eat here is not Italian. That is not Italian. That is desi Italian. The pizzas we eat, the pastas we eat. If you were to eat authentic Italian, you probably wouldn't like it. Yes. और इटालियंस बेचारे देख के मर जाएंगे कि हम हाँ, उनके पिज्ज़ा का क्या कर देते हैं. फन फैक्ट, ऑथेंटिक इटालियन में ऑरिगैनोस और चिली फ्लेक्स नहीं होते हैं, नहीं होते, राइट. सो व्हेन यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट ईट आउटसाइड फूड एवरी डे एंड यू हैव टू स्टार्ट कुकिंग, that is when the real challenge comes in. And then of course managing your expenses, and at some point maybe looking out for safety. And I'll have to say this, living with males, like having male flatmates actually helps. Really? It gives you that sense of security. Okay, tell me how. So there were 2 rooms and the other room was occupied by male Italians. Okay. We would barely speak, they wouldn't speak English, right? और मुझे इटालियन नहीं आती, तो हमारी बात नहीं होती थी. But this one time I fell sick and I felt very sick, so the Indian medicines were not working for me. And I just got up. I opened Google Translator. मैंने बोला I'm very sick. मैंने लिखा I'm very sick. Please take me to the doctor. Right? I translated it in Italian and I texted him. And then he took me to the chemist because there like I don't know, there's some kind of issue. You can't go to the doctors directly or something like that. And then he took me to the chemist. And he got me medicine. So that was the only sweet thing my Italian roommates did for me. But Did you do something sweet for them? no.
But yeah, so चाय पिला देती उनको. yeah, right. वो मर जाते हैं मेरी चाय पी के. Also, they're big on coffee. Tea is not a thing in Europe. They're big on coffee, and they drink that hardcore coffee एकदम ना. ऐसे- Americano, black coffee. हाँ. I read I don't remember if it was a study or what, but I read somewhere that a lot of psycho killers drink black coffee. Yeah. Yeah. Are you gonna be one? No, but I know one. यार जैसे जितना ज़्यादा अच्छा लगता है विद द आइडिया दैट एज अ वुमन यू मस्ट एक्सपीरियंस लिविंग अलोन. ऑफ कोर्स बचपन में लगता था कि फ्रीडम वगैरह की वजह से, बट बड़े बड़े हो के लगता है कि ठीक है यार, इट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट एक्सपीरियंस. देयर आर ऑल्सो सम ड्रॉबैक्स दैट कम विद इट. ठीक है. आई रिमेंबर उसी टाइम पे जब मैं गुड़गांव में अकेली रह रही थी, अब मुझे मेरे घर में ये पता होता था कि एक हाउस हेल्प आती है जो मैं अपने मॉम डैड के साथ रहती थी. मेरे दिमाग में था, मैं देखो बोलूँगी सारे को प्लीज टेल दैट स्टोरी ना, प्लीज टेल दैट स्टोरी. सबको पता है सबके घर में हाउस हेल्प आती है, काम करती है, जाती है. ठीक है. बट तुम मैनेज नहीं करते हाउस हेल्प को. मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि तुम्हें हाउस हेल्प को मैनेज करना होता है थोड़ा सा, कि तुम बताओगे डस्टिंग कहाँ करनी है, प्लेटें कहाँ से उठा के कहाँ पे रखनी है, एंड ऑल ऑफ दैट. मेरे को क्या था, मेरे को था कि यार स्लीप मैक्सिमाइज करनी है उस टाइम पे. ठीक है. नींद में जाके दरवाज़ा खोला सुबह, और नींद में जाके अपना कमरे का भी दरवाज़ा खोल दिया, और फिर उनको बोला कि चलो आप झाड़ू पोछा जो भी आपको करना वो सब कर दो, और ये बोल के मैं सो गई. ठीक है. और मैं डेली यही करती थी, नींद में दरवाज़ा खोलती थी और सो जाती थी, और आंटी जो भी है साफ़ सफाई कर रही होती थी. एक दिन बाय चांस की बात है, मैंने करवट ली और वो उस साइड साफ़ सफाई कर रही थी. मैंने करवट ली, और करवट लेके मैंने अपनी थोड़ी ऐसी नींद में आँखें खोली, and I saw her, you know, sit in front of my mirror on my dressing table and use my face cream. वो अपने चेहरे पे मेरी फेस क्रीम और मेरा मेकअप लगा रही थी, और ये चीज़ मैंने नींद में देखी है लेटे लेटे. और पहले मेरे को लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रही, बट मैं सपना नहीं देख रही थी, और मैं इतनी ऑकवर्ड हो गई कि मैं चुपचाप आंखें बंद करके उधर मुंह करके सो गई. इमेजिन मेरे अंदर इतने गट्स भी नहीं थे कि मैं कन्फ्रंट करूँ उनको. और बेबसी देख तू मेरी कि अब दूसरी मेड कौन जाकर ढूंढेगा. मैंने ना चेंज करी ना मैंने अब चोरी कर लो. हाँ. नहीं, आई एम कन्विंस सादिका फॉर द लाइक्स ऑफ यू. मतलब तेरे को हाउस हेल्प को मैनेज करने के लिए हेल्प चाहिए होगी. लाइक you're that dumb when it comes to all of this. You're bad at this, and you have the least वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट इन लुकिंग आफ्टर थिंग्स, एंड घर मैनेज करना है, सब्जी खत्म हो गई है. अब देयर आर 2 sets of vegetable. ठीक है. ये पैल ज्यादा रस्ट होने, मतलब ये खराब होने वाला है, ये क्या बोलते हैं उसको, राइप है. ज्यादा राइप लोहे की वेजिटेबल. ये नहीं है, तो तेरे में इतना दिमाग नहीं होगा मैं पहले ये खत्म करूंगी फिर मैं ये खत्म करूंगी, तू पहले ये खत्म करेगी और वो फिर खराब हो जाएगा. सो I remember I would come to your place when you were living in Gurgaon. I would open the fridge and I would see कि क्या क्या खराब हो चुका है अब इस फ्रिज में. बट बहुत सारी चीजें मेरे फ्लैटमेट्स की होती थी, और वो मैं सारा खाना फेंकती थी. मैं अपने घर से तेरे लिए खाना बनवा के लाती थी, बिकॉज यू वुड सर्वाइव ऑन आलू सैंडविचेस एंड मैगी एंड वाइन. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट मैंने सादिका का बाथरूम साफ किया है. मैंने सादिका का सिंक और उसकी नाली अपने हाथ से साफ किया, बिकॉज मैडम वाज टू बिजी टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टेल द मेड आंटी ठीक से सफाई करो. I had major confrontation issues. But you know, a crazy hack for when you're living alone, make better friends, make good choices in having friends. Who'll come Find clean friends, your bathroom. exactly. Have good friends, invite them over, especially who know the etiquette of being a good house guest, who will come with food, and who will go after cleaning your washroom and everything. So thank you. Welcome. Love. But other than that, like for example, back in the day we wanted to move out because of freedom reasons, right? Masti asti. Now what stops us from moving out, right? What are the challenges, right? कि ये है, like obviously as like every other person alive on this planet Earth, we have made plans to move out and live together. Yes. कितने 28 साल में आई थिंक हमने 3-4 बारी तो बहुत अच्छे से सीरियसली बैठ के बात की है. But the only reason I personally haven't executed it or like really taken it up more seriously with you is, one, living with your parents definitely is easy on the pocket. For sure. Right? We can't live alone the way we used to as a 20-year-old or a 20, like I was 22, you were 20 when you were living alone.
तब किसी भी चीज में क्योंकि गुजारा तब चल जाता खाने-पीने था. का फर्क ही नहीं पड़ता था. वी हैव अ स्टैंडर्ड सेट, Yeah. राइट? सो वी वांट टू एक लिव लाइक दैट. comfort. पेरेंट्स के साथ रहते हुए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स. सेकंड इज that the freedom that we would really crave for back in the day, we don't crave for it anymore. Yes. Right? We don't have the urge to party. We don't have the urge to go out. We ourselves don't want to push our curfews anymore. And we don't want to invite people also, you know, Yeah, to yeah, for a rager right, or right. something. In fact, I कभी कोई अगर self invite अपने आप को कर दो तो भी burden लगता है कि यार invite तो ठीक है, but how will we tell them that now it's my bedtime and you should leave? Yeah. And I think अब जो मेरे को लगता है वो ये है, see, you had a very solid reason to go to like move to Delhi NCR because you had a job. मेरे लिए पढ़ाई थी. But now what do you tell your parents? How do you even convince them that you want to live alone? अरे I can't. So recently what happened, I was having a chat with my mother. ठीक है, तो मैंने उन्हें बोला कि देखो मैं 28 साल की हूँ और अभी नेक्स्ट 1-2 साल में मेरा शादी आदि करने का तो प्लान नहीं है, बट आई डू वांट टू यू नो मूव आउट एंड लिव बाय माई सेल्फ. और मैं ये बोलती और मुझे उससे पहले ना मेरी मम्मी का चेहरा बनता हुआ दिख रहा था एंड माई मदर वाज यू नो लाइक शी जस्ट वेंट फ्रॉम दिस टू दिस. और फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि बट मैं सोचूं कि कहीं आसपास ही यू नो कहीं आसपास के वीकेंड पे आप आ गए, वीकेंड पे मैं आ गई और मिलते रहेंगे, और कभी मैं लंच पे आ गई, कभी आप डिनर पे आ गए. सो आई वाज ट्राइंग टू गिव द क्वेश्चन ऑल्सो कि मैं सोच रही हूँ बट अगर करूँगी भी तो मैं आपके आसपास करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी कि मैं पता नहीं आउट ऑफ सिटी चली गई या कहीं चली गई. एंड भाई माई मदर वॉज जस्ट लाइक तेरे को कोई रोकता है, तेरे को बाहर जाने से किसी ने नहीं रोका, घर पे दोस्त बुलाने से किसी ने नहीं रोका, हम तो इंटरफेयर भी नहीं करते, यू एनीवे यू नो लिव लाइक अ पेइंग गेस्ट इन आवर हाउस. प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बाहर मूव आउट करना है? तो ऑनेस्टली मेरे लिए तो अभी सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है दैट माई पेरेंट्स हैव गॉटन सो यूज्ड टू हैविंग मी एट होम, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव ऑल्सो बिन स्पॉइल्ड. मतलब I want to move out, but you also want your bed tea. Yes, the idea that I will have to wake up and make my own tea, and my father won't come into my room and give me my bed tea and give me love on my head. That's And also, when you scary. step out of the house, you can leave your room all messy. Yeah. Right? Kapde fele हुए, bathroom too. I don't know if you do you use wiper on the bathroom when you leave the bathroom? I don't think you do. Do you? In the morning? my house help does. Yeah. So you know those kind of things that I you do have wipe to. I don't the think so. floors. I don't think so. But anyway, कि हाँ एक तो and I think at the same time ना खुद भी you feel that your parents are also growing old, right? And after marriage anyway your time with them is very limited. So you want to spend as much time as you can, right? And a lot of women are not even allowed. They don't have that liberty to move out. Sometimes like when I had an excuse of going like studying and you had an excuse of a job, then we were at least allowed. Yeah. Today Yeah, also you find a हाँ. job in Bombay, your parents will be like, okay, you have to go, you must do it. But a lot of women don't even have that That opportunity, like that option. Even if they get a job Yeah. or whatever, like they would just not be allowed to step out of the house. Then you know it's either daddy's home or your or the husband's husband's home. home. And पता है ऐसे में ना I see so some of my younger cousins the way अच्छा उनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से थोड़े से ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, राइट? ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं. तो one way that they've been able to negotiate with their parents कि देखो यार as women we also want to live alone, या वो एक टेस्ट तो होना चाहिए ना कि आपको क्या कैसा चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए आपको पता चलता है, बिकॉज अदरवाइज you're always under the influence of either family, parents, brother, sister, whatever. So जब वो अभी कॉलेज में है सो देव सेड कि यार 1 साल कॉलेज का जो लास्ट ईयर होगा उसमें यू लेट अस लिव इन अ पीजी और यू लेट अस लिव इन अ हॉस्टल एंड दैट विल बी आवर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग वट एवर. एंड इफ यूर गुड लाइक इफ यू बिहेव लाइक गुड गर्ल्स ओवर देयर एंड एवरीथिंग देन मे बी वी कैन यू नो रीनेगोशिएट एंड टॉक अबाउट इट. एंड आई थिंक कि ऑफकोर्स पेरेंट्स अलाउ करे या ना करे, लोगों का घर पे डायनामिक कैसा है, बट ऑल्सो सेफ्टी इज अ कंसर्न, राइट? वी कैन नॉट मिस दैट वाइल वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज इनफैक्ट मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं इंस्टाग्राम पे. देर नॉट अबाउट लिविंग अलोन, देर अबाउट टेकिंग अ वेकेशन अलोन, right? As a woman, when you go and you take a vacation alone and you're living or you're checking in a hotel room or an Airbnb, भाई 36,000 measures that you see women taking कि वो 3 अलग तरह के लॉक्स लगाती हैं और मिरर पे जाके चेक करती हैं कि दूसरी साइड से कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, एंड देन यू गो एंड चेक ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, राइट? एंड देन you check for recording devices here and there, and there are a lot of things that women do just to make sure that they're safe when they're even traveling alone, let alone living alone. Arey, this woman, she shared her experience. She was like, so I've moved into a new neighborhood. It's not too bad, but it's not too good either. Okay. Right? And I'm living alone.
So please suggest how can I make myself feel safer? How can I pretend that I'm living with a man? Right? And then there were such funny things like एक ने बोला कि मैंने अपना बाहर कुत्ते का बोर्ड लगाया हुआ है, तो there's a noisy dog inside, so you know be careful when you're ringing the bell. Yeah, and then the other person is like कि मैं ना ऐसे चीजें उजड़ी खुजड़ी करके अपने घर के बाहर छोड़ देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, there are things accumulating or whatever. And then there's this other person who suggested that cut out a life-size man out of a board and put him on the window every once in a while so people get the idea that you're living with a man. And the gist, the very sarcastic gist of all of this is that in order to protect yourself from men, you have to pretend you're living with a man. Yeah. So you have to have a man in order to pretend that you're... So you have to have a man in order to protect yourself from men. So yes, safety is a concern. And मैं मेरी एक कलीग है, सो शी इज़ मैरिड, ठीक है. अभी रिसेंटली हर इन लॉज आर इन they've gone abroad for some vacation and it's just her and her husband living alone, ठीक है. अभी this other day the husband went to work and she was at home working from home everything, and उसी के घर के सामने वाले एक प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है. सो अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लेबरर्स एंड ऑल ऑफ दैट इन एंड अराउंड द हाउस ऑल्सो एंड नियर द लोकेलिटी ऑल्सो. एंड आई रिमेंबर कि दिस वन डे शी केम टू ऑफिस लिटिल थोड़ा सा ऐसे पता नहीं एक सर्टेन इमोशन के साथ वो आई थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड टाइप, लाइक नॉट रियली डिस्टर्ब्ड बट लिटिल परटर्ब्ड आई कैन से. एंड मैंने बोला कि क्या हुआ, कहती कि नहीं यार मैं ठीक से आराम भी नहीं कर पाई, मैं ठीक से सो भी नहीं पाई बिकॉज माई हस्बैंड वॉज एट वर्क एंड माई इन लॉज आर नॉट होम, एंड जस्ट दी प्रेशर ऑफ मेकिंग श्योर कि दूसरों को ये ना लगे कि मैं घर पे अकेली हूँ, कि बड़ा घर है, हर चीज़ चेक करना कि टेरेस लॉक्ड है या नहीं है, सारी बालकनीज लॉक्ड है या नहीं है, एंड जस्ट द फैक्ट कि ये चीज़ ना पता चले कि मैं घर पे अकेली हूँ, बिकॉज कितनी बारी ज़्यादा चोरियाँ ऑफ कोर्स सेफ्टी कंसर्न वैसे होता है, बट बहुत सारी चोरियाँ होती हैं घर में जब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ठीक है घर पे कोई रह नहीं रहा या वेकेशन करने के लिए गए हैं, क्योंकि इट्स ईजियर टू ओवर पार वन सिंगल वुमन इन अ हाउस, राइट. एंड थिंकिंग ऑफ दिस आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड वन टाइम, सेम गुड़गांव टाइम. मुझे ऐसा लग रहा है उस 1.5 साल में पता नहीं मैंने कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं. आई रिमेंबर आई वॉज इन अ टॉकिंग स्टेज विद अ गाय, ठीक है, एंड फ्लर्ट हो रहा है, बात हो रही है, फ़ोन पे टेक्सटिंग वगैरह सारी चल रही है, बट अभी तक मिले नहीं है, लाइक वी हैवंट मेट ईच अदर, वी कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया ओनली, ठीक है. एंड द गाय सीम्स वेरी लाइक ओ आई विल टेक यू फॉर अ डेट हियर, ओ लेट्स मीट देयर, एंड आई एम स्टिल नॉट इन द फेज वेर आई एम कन्विंस्ड टू से येस टू अ डेट, बट आई एम ओके इनफ टू टॉक, ठीक है. Finally, he asked me out properly and I said yes. A date was decided. ठीक है, उस डेट के आने से 1-2 दिन पहले मेरे को कोल्ड फीट होनी शुरू हो गई, ठीक है, कि मैंने हाँ तो बोल दिया बट मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं डेट पे जाऊँ या मैं ना जाऊँ, ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने डेट वाले दिन रात को ऐसे 8 बजे का टाइम है और मैंने उसको 6 बजे सॉरी मैसेज भेज दिया दैट लिसन आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू कम बिकॉज आई जस्ट गॉट कोल्ड फीट इन द एंड मोमेंट. मैं मैसेज करके मैं भूल गई. रात को मेरे को 11-11:30 बजे की बात होगी, ठीक है, बाई चांस की बात है. उस टाइम पे मेरे फ्लैटमेट्स अपने किसी फेस्टिवल के लिए अपने घर गए हुए थे, तो आई वॉज दी ओनली वन इन द इंटायर हाउस. 11:30 के आसपास मेरे को उसका फ़ोन आता है और मैं मन में सोचूं, मैंने कहा यार इसको बुरा लगा होगा, कोई बात नहीं, मैं बहुत प्यार से बात करूँगी और उसको मना कर दूँगी दैट लिसन आई एम सॉरी वट एवर. आई पिक अप द कॉल एंड देयर इज़ अ वुमन, ओके, देयर इज़ अ वुमन एंड शी मतलब ना हाय ना हेलो एंड शी इज़ अब्यूजिंग मी. वो बहन जो गाली पे गाली एंड हाउ डेयर यू एंड यू बिच एंड यू दिस एंड यू दैट, एंड आई एम लाइक हु इज दिस, एंड शी सेड हु इज दिस, आई एम द गर्लफ्रेंड ऑफ द गाय दैट यू हैव बीन आफ्टर एंड यू हैव बीन टेक्सटिंग. एंड मैं उस मोमेंट में उसको ये बताना चाह रही हूँ कि बहन मैं नहीं आई थी, अगला इंसान मेरे को टेक्स्ट कर रहा था. इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी बिकॉज आई स्टूड हिम अप, आई डिड नॉट इवन शो अप फॉर द डेट. और वो मेरे को थ्रेटन कर रही है, तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं अभी अभी यू डोंट नो मी एंड मैं सीएम को जानती हूँ, दिल्ली का सीएम तेरे को ऐसे उठवा लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, ठीक है. और राधिका मेरी तो गांड फट गई, ठीक है. ये सुन के मैंने फ़ोन काटा, और मेरे हाथ कांप रहे, मैंने फ़ोन काटा, मैंने ब्लॉक किया उसको, उस नंबर को डिलीट किए सारे मैसेजेस, और मैं उस रात को सो नहीं पाई बिकॉज मैं पूरे टाइम अपने सारे घर की बालकनीज चेक कर रही थी और मेन डोर चेक कर रही थी, लॉक था नहीं था, और मेरे को बस उस एंजाइटी में नींद नहीं आई उस रात को. वो अलग बात है, अगले दिन जब ये चीज़ मैंने अपने किसी दोस्त से शेयर करी तो वो कहता कि अबे अरविंद केजरीवाल से कौन डरेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे उसे सीएम. बट यू अंडरस्टैंड उस मोमेंट में मेरी फट गई थी यार. तो अकेले रहने में ना ऐसे वाली सडन वो बहुत होती है. For sure. अरे it's very scary and I think this is one thing that
women living alone तो should anyway follow, and all of us should also follow who are not living alone. Limit the information you put out on social media. Now this yes. girl too did not know your address and she was just threatening you like that. But I'll tell you what, a woman was robbed solely because she used to post everything on her Instagram. एंड लोकेशन टैग्स उसकी गाड़ी पता चल गई, उसका घर पता चल गया, वो अकेले रह रही है, उसको सब कुछ पता चल गया. So you really need to know, like not everything is for social media. Nobody needs to know. In fact, I did this one time. My parents were traveling abroad and I put out a story. yes I shouldn't have. announcing that you're home alone. Right. And I was safe because it's a full family house, right? So it was just me in the floor who was alone. But otherwise, I had people around me. But you're not supposed to do something as stupid. Arey, don't you remember this one time when we were in Goa? We were in Goa, we were sitting at a Maggie shack or we were sitting at a Oh my coffee God, shack. yes, And fuck. oh my god, that was a creepy, You know that creepy story because मैं तो वहाँ पे थी ही नहीं. But you please go because you still know the details and I don't. Yes. Okay. So, a couple of us, 4-5 friends, we went to Goa for a mini vacation. हमें एयरपोर्ट पे कोई एक तो इंसान मिला और वो शायद हम दोनों को नहीं मिला, हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स थे उनको मिला. एंड आई थिंक दे ट्राइड टू से हाई हेलो, बट वी फिगर्ड कि एक होता है ना कि यार बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं, बहुत सारे इंडियंस डेलीआइट्स गोवा जा रहे होते, तो कोई ना कोई आपस में पूछ लेता है कि अच्छा ठीक है यार आप कहाँ से गाड़ी रेंट कर रहे हो या फिर आप कौन से उस पर रह रहे हो. सो वी थॉट कि बस वैसा सा कॉन्वर्सेशनल वे में किसी ने हाय हेलो बोला, ध्यान भी नहीं दिया, आगे बढ़ गए. 2 दिन बाद वी आर सिटिंग एट दिस वन शैक इन गोवा और वहाँ पे यू हैड जस्ट एक्सक्यूज योर सेल्फ टू गो टू द वॉशरूम. Yeah. ठीक है, आई एम सिटिंग देयर विद थ्री ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स एंड दिस गाय अगेन कम्स अप. आई पर्टिकुलरली डिड नॉट रिमेंबर हिज फेस, आवर फ्रेंड्स डिड. ठीक है, और वो सडनली बोलने लग गया कि नहीं मैं तो आप लोगों को जानता हूँ. एक एक करके उसने पहले एक दोस्त का नाम बताया, दूसरे दोस्त का नाम बताया, मेरा नाम बताया, फिर उसने सडनली तेरा नाम बताया और तेरा नाम बता के उसकी सुई रुक गई. और मुझे तो पता है कि आप क्या कहते हैं इस जगह पे रहते हो दिल्ली में और आप इस स्कूल में गए थे और आप इस कॉलेज के हो और ये आपका दूसरा बेस्ट फ्रेंड है. और वो बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ आया नहीं हुआ था उस वेकेशन पे. राधिका वो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन अनलोड कर रहा था ना कि उसको क्या क्या पता है तेरे बारे में. ही न्यू वेर यू लिव्ड, वेर यू स्टडीड, हु योर बेस्ट फ्रेंड वॉज, हु योर अदर बेस्ट फ्रेंड वॉज. When did my sister get married? Yes, This he information knew was when like- your sister It blew got my married. mind. He knew what clothes you'd want. He also knew the place you were staying in at Goa. क्योंकि लोकेशन टैग वहाँ पे डाला हुआ था. और धीरे धीरे ना मेरे को उसकी आंखों से वो ऑनेस्टनेस या फिर ओ अच्छा मैं तो जानता हूँ आप मेरे सोशल मीडिया पे, वो हटते जा रहा था. और वो जो एक वो साइको किलर की वो आंखें वैसे चमकने नहीं लग जाती, वो वाली चीज़ आने लग गई थी. और मुझे पता है कि उस मोमेंट में मेरे को कितना डर लग रहा था कि बहन चोद इसको बायोडेटा बताए, इसको हर चीज़ बताती, एक माइन्यूट डिटेल भी बताती, बिकॉज दैट्स हाउ मच इट स्क्रूटनाइज्ड यू ऑन सोशल मीडिया. And the fun fact is that the moment I came, the guy went completely silent. Yeah. He just grew very nervous around me and then he left. मेरे आते 1-2 मिनट में he left. बट उससे पहले वो चौड़ा हो रहा था कि उसको कितना सब And कुछ that was पता the first time that I realized, okay, I have like a real stalker or something. है. Yeah. And then you remember the other time when you and I, we were at a cafe and we were walking from a cafe. And we just left from that place. Or this is right after Goa. Okay. Right? I So remember you were we went, already हाँ. creeped out because of the Goa story. हाँ. Right? And we left greener. Yeah, we were at Greener. Yeah, हाँ. we left greener and somebody reached out to you on Instagram that you're with Radhika and Radhika's hair is tied in a bun and Radhika's wearing this. Yes. And then you called me like, Radhika, I'm very scared for you. I don't know what's Yeah. gonna happen. I remember. Yeah. And तब तक we hadn't posted anything. हमने कोई location tag नहीं डाला हुआ था. हमने कुछ But भी किसी नहीं ने डाला हुआ IRL था. तेरे को देखा हुआ But था. somebody, yeah. So social media has its advantages, but it also has its disadvantages, and it is so important to limit the information you post out on social media. For sure. And living alone तो yes. For sure. अच्छा तेरे को मेरा रूम याद है ना कि मैं हमेशा नहीं लॉक करके सोती थी अंदर से, राइट? और एक रूम में मैं अकेली रह रही होती थी, एक रूम में 2 लड़कियां रह रही होती थी और एक रूम में एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड रह रहा होता था. और ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड कभी-कभी तू नहीं होती थी और मैं रह रही होती थी. हाँ, कभी कभी मैं नहीं होती थी, तू रह रही होती थी. अच्छा, तो जो लड़की का बॉयफ्रेंड था ना वो ऑब्वियसली अनऑफिशियली रह रहा था, बिकॉज हमारी लैंड लेडी को नहीं पता लग सकता था कि एक लड़का भी रह रहा है ऊपर एक फ्लैट में. ठीक है, तो मुझे याद है कि अर्ली मॉर्निंग मेरी आँख खुली और शायद मैं उस दिन अंदर से लॉक करके नहीं सोई थी अपना रूम, बिकॉज ठीक है ना यार भूल गए. भाई एकदम से मेरा दरवाज़ा खुलता है अर्ली मॉर्निंग एंड आई सी समबडी पीपिंग इन. मतलब बहुत बहुत हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था. ठीक है, और उस टाइम पे भी मैंने ऐसे बहुत हल्के से अपने ऐसे
छुप के अपनी आंखें थोड़ी सी खोल के देखा एंड इट वाज दैट अदर गर्ल्स बॉयफ्रेंड पीपिंग इन. Oh my god. This is very creepy. I'm so glad I've not had these experiences. वो दिन है और फिर उसके बाद के अरे सारे हाय! दिन है मैं हमेशा लॉक करके सोती थी. How creepy is that? My god. आई डोंट नो, इज दिस अ फेटिश और अ किंक I have no idea. कि यू लाइक वाचिंग पीपल स्लीप. I have no idea. एंड दैट वाज वेरी वियर्ड. I know feet fetish is a real thing, but उसके अलावा I Feet have fetish no now idea. is common. People have moved on to other fetishes. Yeah, you know, I've heard that it's like a legitimate way of making money. Feet fetish, yes, of course. Yeah, Only fans पे लोग और कैसे मतलब और भी ways से पैसे कमा रहे हैं, but हाँ. Yeah, so I think in order to move out, you have to tackle that whole situation with your parents where you have to convince them that, okay, I need to move out and why should I be allowed to move out? And मेरे हिसाब से उस चीज़ को टैकल करने का सिर्फ एक तरीका है. क्या? And that is to pull a Madhavan in 3 Idiots. You know how he went to his his father, who was absolutely against that career, and he poured his heart out. I think a parent, no matter how strict, always has that soft spot. And if you can tap into it, truly pour your heart out, make them understand why you want to do it, you know, your father will be like Jasimran Ja. अब्बा नहीं मानेंगे. So you have to convince him. Like you have to convince them properly. You have to tell them why it's important for you, why it is a once in a lifetime opportunity, experience and learning, and why they should allow you in order for you to realize your full potential as an individual. And if you can do that, you'll be allowed. I think that is the only way, because how else do you, of course there's always ways like जैसे lying. मैंने किया कि यू नो नौकरी वहाँ ढूंढो जहाँ पे उनके पास ऑप्शन ही ना हो. बट नहीं, अगर एक हेल्दी डिस्कशन करनी है तो कर सकते हैं. बट आई ऑल्सो थिंक कि पता है योर पेरेंट्स विल ओनली अंडरस्टैंड यू जब उनको किसी ना किसी आपके लाइफ के एरिया में आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो कि चलो ठीक है, ये इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता, ये वो रह के सीख लेगा, बट एटलीस्ट ये तो कर सकता है. तो आई थिंक कि वो बेसिक्स में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए. या तो वही होनी चाहिए कि आपको अपना खुद का ख्याल रखना आता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस, चाहे वो खाना बनाना हो गया, खुद के कपड़े धोने हो गए, बर्तन मांजने हो गए, जो भी हो गया, या तो उस एस्पेक्ट में आपको एक आपके पास चीज़ है, या तो आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है थोड़ी सी कि आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हो और चीज़ें ध्यान कर सकते हो. या तीसरी मुझे नहीं पता क्या होनी चाहिए. हाँ, आई थिंक निकम्मे बच्चों को कोई भी नहीं भेजेगा बाहर, because हाँ, then you know क्योंकि कि वो क्या ही करेगा ना. और बट आई थिंक मेरे को लगता है निकम्मे बच्चे को भेजना भी चाहिए संभालने का actually, यही yes, तरीका है. yes. You cut him off. मेरे को बोलते You हुए cut चीज़ your समझ आ child गया. off. Manage it. How that was what was that movie Waqt? Oh yes, वक्त. Where Amitabh I loved Bachchan is that like, movie. अक्षय कुमार अक्षय को कुमार को बाहर उसने लात निकालता मार है. के बाहर निकाल दिया था कि रहना है तो रेंट दो, खुद के घर में रहने में भी रेंट दो, और अपनी बीवी अपने बच्चों को खुद पालो, खुद मेहनत करो, and I honestly that is how you feel learn. when you leave your house and you're on your own, there are only two things that can happen, and those two things are very extreme. Either you're here or you're here, but most likely you'll go here only, because eventually you come Tell that around. to my brother who went to a hostel and came back in 6 Baba, he months. was a child ना, तब वो बच्चा था. But as an adult, right? आप 6 महीने जितनी मर्जी आप आवारागर्दी कर लो, in the 7th month, you will come to your senses. You will realize that you are throwing your life into the gutter. Yeah. And you will get your shit together. So extremes happen. That's what I feel, and that's what I've seen also around me, in my case also. But most likely, this extreme is going to be achieved and not this. Yeah. So today's sponsor is Botanic Hearth, and my personal favorite from this brand is this rosemary hair oil. It's got jojoba, biotin and castor oils, and it's good for volumizing, thickening and strengthening your hair. And try it for yourself and see.